ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये कहना कि मैं भी वहाँ प्रचार करने जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आत्महत्या करने जैसा कदम होगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह में अगर इतनी ये ताकत है तो वो फिर हरियाणा में दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में कोई जनसभा करके दिखा दो, तेरे को भी समझ आ जाएगी हरियाणा क्या है। अभी तक तेरे को बहम होगा, ये लोगों का कहना है। वहाँ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। जिस तरह पंजाब में धौण चो किला कट दिया गया, इतना ही हरियाणा बोला गर्दन में से सरिया निकालना है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हरियाणा में हुई है, उसके मूल में मट्ठा डालने का काम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। जैसे भारतीय जनता पार्टी का नारा था अब की बार 75 पार, तो दुष्यंत चौटाला कहते थे कि मनोहर लाल खट्टर जमुना पार, इन जमुना पार छोड़ के आवांगे। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3-4 ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਮਾਝਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? धार्मिक ध्रुवीकरण कभी हरियाणा में नहीं हुआ था, सामाजिक ध्रुवीकरण हरियाणा में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में करने में सफल हुई और उनको सत्ता मिली थी। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। जी शुक्रिया, मेहरबानी जी। ठीक ठाक है? हाँ, ठीक है, दुरुस्त है। दुरुस्त है। हाँ। ऐसा हरियाणवी भी सिखा देंगे आपको। ठीक है, मैं सिखना चाहना। मतलब ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। सब तो पहले तो ਆਪਾਂ हरियाणवी में बोलेंगे राम राम। हाँ, आप बोलोगे राम राम, मैं बोल दूंगा सत श्री अकाल। हाँ, नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ जी। ਉਹ नहीं, हरियाणवी भी अच्छी है। वो पंजाब क्योंकि मैं रहा काफी समय जी। मेरा बचपन पंजाब में बीता और मेरे जो पिताजी और मेरे नाना जी पंजाब, मेरी माता जी पंजाब में पढ़े जी। इसकी वजह से पंजाबी वो हमारे संस्कृति में, हमारे अपने परिवार में है। हरियाणा क्योंकि मूल निवासी हम लोग जी, और हरियाणवी इसलिए आती है। और हिंदी क्योंकि हिंदी प्रदेशों में मैंने बहुत काम किया, जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है। हिंदी इसलिए थोड़ा बेहतर हो गई और इंग्लिश इसलिए आ गई कि पढ़ने में इंग्लिश की जरूरत थी, तो मैनेजमेंट किया और रेडियो इंडस्ट्री में रहे तो उन लोगों से डील करना पड़ता था, तो इंग्लिश भी थोड़ा सीखना पड़ गई। साडी घट बनती है अंग्रेजी ना। अच्छा सर, हरियाणा ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3-4 ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 60 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਮਾਝਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਵੋਟ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। अब मैं अपनी हरियाणवी में, बिल्कुल जी, हिंदी हरियाणवी, हरियाणा में जिस तरह
एरिया है जो राजस्थान बॉर्डर से लगता है और इधर पंजाब के बॉर्डर बठिंडा से लगता है जी सिरसा डिस्ट्रिक्ट, फतेहाबाद जिला जो मानसा से लगता है जी उसके बाद हिसार जिला जिसका चूरू राजस्थान में लगता है और काफी हिस्सा संगरूर के साथ लगता है ना। और उसके बाद जींद का इलाका है, तो ये कुछ जींद का इलाका, ज्यादा नहीं, लेकिन ये जो हिस्सा है इसको एक तरह से अलग बागड़ी हिस्सा बोलते हैं। अच्छा जी, हरियाणा में बागड़ी क्षेत्र। जी उसके बाद आ जाता है जो ठेठ हरियाणा के जो जाट अक्खड़ वाला और सभाव वाला वो जो खित्ता आ जाता है, वो उसमें उसको बोलते हैं देशवाली। उसमें आते हैं जींद का बड़ा हिस्सा, रोहतक पूरा जिला, जींद जिला, रोहतक जिला, उसके बाद जो झज्जर जिला, उसके बाद ये कैथल का जिला काफी उसमें हिस्सा आ जाता है जी, सोनीपत का पूरा जिला वो हो गया, झज्जर हो गया। तो ये जो बीच का हरियाणा है इसको बोलते हैं देशवाली जी, देशवाली। और एक जो दक्षिण हरियाणा का हिस्सा है जिसमें काफी हिस्सा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का है, भिवानी जिले का, जो राजस्थान के बॉर्डर के साथ साथ लगता वो एरिया है। तो उसमें भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है जो राजस्थान के एक्सट्रीम बहरोड के पास लगता है जी, और इधर आ जाइए रेवाड़ी है और गुड़गांवा, सोहना। तो ये इसको बोलते हैं जहां यादव जो हमारे यहाँ अहीर हैं यादव जाति, वो उनका बहुतायत है वहां, जी, तो इसको अहीरवाल बोलते हैं। और एक आ जाता है जिसको उत्तरी हरियाणा अगर कहें तो उसमें यह है कि अंबाला है, यमुनानगर है, जो चंडीगढ़ के आसपास लगते हैं सारे, जी, जो पुआध जिसको पुराने जमाने में बोला जाता था आपके पंजाबी में, ये पुआध का इलाका, इसको वैसे ही माना जाता है पुआध में। लेकिन मूलतः हरियाणा को तीन तरीके से देखा जाता है, बागड़ी, देशवाली और अहीरवाल। ठीक है ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ हरियाणा 'ਚ? देखिए हरियाणा और पंजाब जी, अगर देखा जाए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जी, ये तीनों का अपना पुराना भाईचारा है। जी, और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पंजाब को हमेशा हरियाणा में बड़े भाई का सम्मान दिया जाता है, जी, और इसी प्रकार राजस्थान में हरियाणा और पंजाब को बड़े भाइयों का सम्मान दिया जाता है। ये इसलिए है क्योंकि पंजाब एक ऐसा खित्ता है जिसने हमेशा से बहुत बड़े बलिदान दिए हैं, जी, और जब भी विदेशों से आक्रांत आए, सदियों से अगर जो भी बलिदान हुए, जो त्याग हुआ, वो सबसे पहले पंजाब को करना पड़ा। जी, और इनके बड़े बलिदानों की वजह से, इनके बड़े त्यागों की वजह से इनको वो सम्मान भी प्राप्त। तो नेचर जो है, प्रकृति और स्वभाव, क्योंकि ये सारा कृषक समाज है तो इनका स्वभाव भी एक ही है। तो जिस तरह पंजाब में धौण चो किला कट दिया गया जी, इतना ही हरियाणा च बोला गर्दन में से सरिया निकालना है। अच्छा, मतलब गर्दन से सरिया निकालना है। हाँ, तो वो जो स्वभाव है हाँ, ठीक वैसा ही है जैसा पंजाब में है। ठीक है। हाँ, हरियाणा में थोड़ा सा ये है कि विश्वास भी उसी तरह करते हैं ज्यादा, लेकिन जब तंग आते हैं या किसी को जब सबक देना होता है तो फिर गर्दन में से बढ़िया से सरिया निकालते हैं और अच्छी तरह निकालते हैं ताकि आगे के लिए कभी उसको तकलीफ ना हो। अच्छा अच्छा, चलिए वोट पैटर्न तो आपने हमें बता दिया, जैसे वहाँ अभी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो मैं हिंदी बोलने लग गया। जी 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 देखो, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जी लगभग सारी सीटें डिक्लेयर कर दी, 3 सीटें छोड़ दी हैं जी, उसमें एक सीट अभी छोड़ी हुई उन्होंने फरीदाबाद की जी, जहां से उनके भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, वो अपने बेटे के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। दूसरी बड़ी सीट छोड़ी हुई है उन्होंने महेंद्रगढ़ की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज नेता आज के दिन रामविलास शर्मा जी, जो 4 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा हरियाणा में रहे, और वो तब से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं जब हरियाणा में कोई उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं था जी, और उनकी अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुई और वो सीट भी अभी फाइनल। तीसरी सीट फाइनल जो नहीं हुई है वो है सिरसा की, और वो सिरसा की सीट इसलिए है क्योंकि जो गोपाल कांडा है, पिछली बार उसने बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन अब उनके आपस के जो रिश्ते हैं उतने मधुर नहीं रहे, तो
सिरसा में गोपाल कांडा चाहते हैं कि मैं सीट लड़ूं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गोपाल कांडा ने जो अपनी एक पार्टी बनाई हुई है, जो स्थानीय रीजनल पार्टी जिसको कहते हैं, वो उसका विलय नहीं करना चाहते और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनका विलय कर दिया जाए। तो ये एक उनका पेच फंसा हुआ है और लगभग सारी सीटें तय हो गई। उनकी भारतीय जनता पार्टी की सीटें तय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में धड़ाधड़ खटाखट, जैसे वो राहुल गांधी बोलते हैं, उसी तरह से ये इस्तीफे हुए हैं और बहुत से लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी से हैं। और उसमें से अगर मैं गिनती करने लगूं तो कल रात तक 18 लोगों के ऐसे जो मंत्री, पूर्व मंत्री या उनके बड़े चेहरे वो पार्टी छोड़ चुके हैं। और उसी के समानांतर आज उम्मीद है कि कांग्रेस अपनी अगली लिस्ट निकाल देगी। कांग्रेस ने अभी तक उनकी 3 लिस्टें निकाली हैं और उनके लगभग अभी कह सकते हैं कि 41-42 उनके कैंडिडेट निकले हैं। बाकी लिस्ट आज आनी है क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। तो हो सकता है कि कांग्रेस की एक रणनीति हो कि जितनी देर में निकालेंगे इतने ही जो बागी हैं वो कहीं भाग ना पाए और कहीं दूसरी पार्टियों में जाके वो पर्चे ना भर दें इनके जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ। सर, बीजेपी में बगावत क्यों हो रही है? एक तरफ तो सत्ता है उनकी, तो बगावत का आप क्या कारण मान रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हरियाणा में हुई है उसके मूल में मट्ठा डालने का काम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। आज वो इस स्थान पे भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में ले आए और आपको याद होगा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले उनके आंतरिक सर्वेक्षण में उनको पता लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और लोगों का विश्वास भी उतना पूर्ण नहीं है जो कभी 2014 या 19 तक था। तो उनको लगता था कि बहुत सी सीटें, जैसे उनका मानना यह था कि हम 10 की 10 सीटें जीतना चाहते हैं, लेकिन उनको पता लग गया था कि शायद 10 नहीं सीट जीत पाएंगे। तो उन्होंने एक एंटी इनकम्बेंसी, अब डबल इंजन की सरकार अगर मान लीजिए रही है तो एंटी इनकम्बेंसी भी डबल ही होनी थी जी। तो उसी को देखते हुए उन्होंने प्रदेश में नेतृत्व को बदल दिया। लोकसभा के चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनको बदल के और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा तजर्बा पंजाब में हुआ था, कांग्रेस ने किया था, वो फेल हो गया था। क्या हरियाणा में भी ऐसे हो सकता है? हरियाणा में हो गया फेल। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो ये तजुर्बा किया उसका परिणाम क्या आया कि वो 5 सीटें वैसे ही लूज कर गए। ठीक है, लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को खोनी पड़ी, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। और अब उसके तुरंत बाद अब विधानसभा चुनाव है जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक पिछड़ा वर्ग का चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया था, क्योंकि देखिए हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आई थी 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा आधार हरियाणा में कब नहीं था जी। हरियाणा में इनकी जद्दोजहद 1978 से शुरू है, जब कांग्रेस इमरजेंसी के बाद नई सरकार जनता दल की बनी थी। उसके बाद से ये जद्दोजहद करते करते इनको 4-5 दशक हो गए, लेकिन 2014 तक आते आते इनको कभी भी 10 से 1 दहाई से ऊपर सीट नहीं मिली थी जी। पहली बार हुआ 2014 में कि ये अपनी इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए। उसके कारण में जिस प्रकार से इन्होंने कहा था और जानबूझ के इन्होंने सामाजिक ध्रुवीकरण किया, और वो सामाजिक ध्रुवीकरण था कि जाट जो अग्रणी जाति है, जो किसान कौम है, मेहनतकश कौम है, उनके विरुद्ध दूसरी जातियों के आक्रोश को बढ़ाया, दूसरे सामाजिक वर्गों के आक्रोश को बढ़ाया और वो सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ। तो हरियाणा में जाट वर्सेस अन्य जातियां हो गई जी। जबकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो सामाजिक भाईचारे के लिए माना जाता है। आपने देखा होगा कि अभी नूह में जिस प्रकार से एक घटना हुई थी जिसमें मुस्लिम लोगों के ऊपर और भारतीय जनता या हिंदू का एक वो क्लैश हुआ था, और जब उस पे बात आई तो हरियाणा के लोग ही खड़े हो गए थे कि हम मुस्लिम्स के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे क्योंकि ये हमारे भाई हैं जी। तो धार्मिक ध्रुवीकरण कभी हरियाणा में नहीं हुआ था, सामाजिक ध्रुवीकरण हरियाणा में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस 2014 में करने में सफल हुई और उनको सत्ता मिली थी। अब जो वो ध्रुवीकरण है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और आज की जो स्थितियां हैं, इसीलिए इन्होंने अपना एक जो चेहरा ओबीसी का, जिसको पिछड़ा वर्ग का चेहरा कहा जाता है, नायब सिंह सैनी को, उसको आगे किया। लेकिन आज परिस्थितियां ये हैं कि जो इनकी कार्यशैली थी पिछले 10 साल की मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री के तौर पर, जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की थी, उनकी वजह से आज इतना बड़ा नाराजगी, इतना बड़ा गुस्सा लोगों में धरातल में है।
नंदप्रीत जी, आप देख रहे होंगे कि आपने शायद खबरें सुनी होंगी, हरियाणा के बच्चों को, युवा बच्चों को यूक्रेन में जी जी जी। लड़ने के लिए जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए। हरियाणा की सरकार की तरफ से ही बहुत से ऐसे बच्चों को गाजा, इजराइल भेजा गया फ्रंट पे रोजगार के लिए। आज जो भयानक स्थिति रोजगार की हरियाणा में है, जो अब बच्चे भी पलायन करने, पंजाब की तरह अपने लिए संभावनाएं तलाशने की कोशिश में वो भी विदेशों की तरफ मुंह करने लगे हैं जी। तो ये जो एक ऐसी चीजें हैं, ये नीतियों की वजह से हरियाणा में जो असंतोष बढ़ गया, उसके बाद किसानों का आंदोलन रहा, किसानों के मुद्दे हल नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 2012-13 में बड़े प्रदर्शन किए और जितने भी बड़े नेता हैं ये सबसे पहले कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को, उनकी सिफारिशों को लागू करके सबसे पहले हरियाणा में लागू किया जाएगा। लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को कहीं लागू नहीं किया गया और बल्कि बीच में वो 3 कृषि कानून लाए गए, जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पे किया और सरकार को झुकने को मजबूर किया। तो ये एक किसान, और उसके बाद भी निरंतर किसान अपने मुआवजों के लिए जिला दर जिला, तहसील दर तहसील धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समाधान नहीं हुए। उसके अलावा जो महिला अस्मिता के सवाल है, महिला सम्मान की बात थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई विशेष ऐसी नीतियां नहीं लाए जिससे महिलाओं का सम्मान हो सके। क्योंकि देखिए, कृषक समाज है, ग्रामीण समाज है, मनरेगा के जितने भी ऐसे जो बजट थे उसको धीरे धीरे कम कर दिया गया। अब जो कृषक समाज है, जिनको मनरेगा के तहत काम मिल जाता था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो वो तकड़ी हो जाती थी, सुदृढ़ हो जाती थी, उसको भी धीरे धीरे हिला दिया। तो ये ग्रामीण समाज जो है, और वहां जो लोग थे जो फसलें बोने के बाद अगर खाली हो जाते तो वो अपने समय का सदुपयोग करके कुछ पैसा कमा लेते थे, उनको भी नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से पूरे समाज के सारे खित्ते में, सारे स्ट्रक्चर में, संरचना में जो एक तरह का असंतोष बना इन नीतियों की वजह से, वो सबसे बड़े कारण है। और सब उसके बाद फिर ये जो पहलवान बेटियों का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से ही शुरू किया था। लेकिन आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या है, वो विनेश फोगाट या पहलवान बेटियों के द्वारा बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोप और उसको सरकार के द्वारा एक तरह से संरक्षण देना, वो उससे जाहिर होता है। तो वो भी एक जो गुस्सा है महिला अस्मिता और सम्मान को लेके, वो भी इसमें निरंतर बना हुआ है जी। तो ये सारे चुनाव में जिस प्रकार से, और फिर जो असल सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ क्यों मची। अब जितने भी इस्तीफे आप देखेंगे, मैं आपको इस्तीफे दिखाता हूं, उन लोगों की जो लैंग्वेज है उसमें जो लिखी हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल आदर्श उसको तिलांजलि दे दी है, और जो दूसरे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं उनको आप टिकट भी दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने 40-40, 50-50 साल अपने जीवन के दिए, उनको आपने तिलांजलि दे दी, उनको आप पूछ नहीं रहे। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक आनुवंशिक जो पैतृक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके जो लोग हैं उनको भी कोई ज्यादा तवज्जो इस सारे प्रशासन के काल में नहीं दी गई। तो उनकी नाराजगी भी अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, और फिर युवा वर्ग, जिनमें एक उस वक्त में एक आशा पैदा हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, रोजगार मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन रोजगार कहीं नहीं मिला। तो आप देखिए कि धीरे धीरे ये सारी चीजें, और वो जो भरम एक बना था, वो भरम पूरी तरह से हरियाणा में टूट चुका है। तो आज ये लगता है कि जो ये उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्तर हो गया, आज जो स्थिति है, उनको अपनी सम्मानजनक हार बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सर, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देख रहे जी? नंदप्रीत जी देखिए, जहां तक बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना कि मैं भी वहां प्रचार करने जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आत्महत्या करने जैसा कदम होगा। क्योंकि जिस तरह के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर केवल विनेश ने नहीं लगाए, बहुत सी पहलवान बच्चियों ने लगाए जी। आपको याद होगा कि 8-9 बच्चियां ऐसी थी जिन्होंने ये किया। उसके बाद क्या है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी अर्जी दी थी कि मेरे खिलाफ जो आरोप हैं इनको खारिज कर दिया जाए, जो सर कोर्ट ने मना कर दिया। आरोप तय होने के बाद, और बड़े गंभीर आरोप हैं जी, इस प्रकार के आरोप तय होने के बाद भी अगर वो व्यक्ति इस प्रकार का बयान देता है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तुरंत, हाँ हो गया उसका निर्णय कि उसको चुप रहने के लिए कहा गया है कि उसमें कोई बयान नहीं देगा। लेकिन जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में बहन बेटी सबकी सांझी मानी जाती है, ये हमारे सामाजिक मूल्य हैं। और जब बहन बेटी की इज्जत का सवाल आता है तो आप जानते हैं कि इस सारे खित्ते में जी, और ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सिख पंथ के जो गुरु रहे, उन्होंने बेटियों की अस्मिता बचाने के लिए जिस प्रकार के काम किए हैं, अद्भुत हैं। वो उसकी मिसाल विश्व में कहीं नहीं मिलती। तो उसी चीज को मानते हुए, उसी तरह के सद्भाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में भी बेटियों के आत्मसम्मान के लिए पूरा प्रदेश इकट्ठा होगा और वो विनेश फोगाट के पीछे खड़ा रहेगा। लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है? लोगों का रिएक्शन विनेश फोगाट के लिए बड़ा समर्थन अब उनके साथ जुटना शुरू हुआ है। और हरियाणा के जो समाज है वो कहता है कि जो अन्याय की लड़ाई है जो विनेश फोगाट ने लड़ी, उस लड़ाई के लिए सबक सिखाने का समय अब आया है और वो वोटों में अब के वो सबक सिखाने की तैयारी में है। जैसे मैंने कहीं सुना था बृजभूषण सिंह ने जैसे कहा कि वो आएगा, उसको लेके हरियाणवी बोली में उन्होंने कुछ बोला था, वो क्या था? वो तो देखिए, बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी तरह से कह दिया था, लेकिन हरियाणा में तो ऐसी कहावत है कि जो इस तरह का दम्भ रखता है, हरियाणवी में हो, हरियाणवी बोली, हाँ, जो दम्भ रखता है, जो अहंकार रखता है, जो इस तरह की मरोड़ रख है, तो मरोड़ तो यहाँ किसी की नहीं चलन दे। और हरियाणा में तो मतलब यूं क्या अगर भी हम तो जूता मार के राम प्रकट कर लिया। और रही बात, जो आदमी इस तरह का दम्भ रखता हो, जो इस तरह का मरोड़ रखता हो, तो लोग ये कह रहे हैं, जो जिस तरह की गांव में बात चल रही है कि बृजभूषण शरण सिंह में अगर इतनी ताकत है तो वो फिर हरियाणा में दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में कोई जनसभा करके दिखा दो। तो ये हरियाणा के लोगों ने उनको खुली चुनौती दे रखी, भी आ जा कर ले, जनसभा करके दिखा दे, तेरे को भी समझ आ जाएगी हरियाणा क्या है। अभी तक तेरे को वहम होगा, तो हरियाणा क्या है, कैसे है, वो पता लग जाएगा, कर लो प्रचार, ये लोगों का कहना है वहां। तो वो खुली चुनौती एक तरह से हरियाणा के लोग दे रहे हैं। और आप जब चलेंगे और जैसे ही हमारे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे जी, और जब उस हलके में आप जाएंगे, उस विधानसभा क्षेत्र में आप जाएंगे, हम देखेंगे कि वहां से रिपोर्टिंग में आपको सीधी बातें हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे कि लोग वहां क्या कहते हैं और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में लोगों की क्या भावनाएं हैं इस बात को लेके, वो भी हम सुनवाएंगे। और मुझे लगता है कि ये सच्चाइयां जो है समाज की, जो ये भावना है, ये सामने भी आनी चाहिए। अच्छा सर, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖਰੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੌਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜ कोना मुकाबला होएगा, ਇਹਦੇ ਚ फायदा किनू होएगा, नुकसान किनू होएगा? नंदप्रीत जी, हरियाणा में अब की बार जो मुकाबला होना है वो दो ही पार्टियों का मेन है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा जी। जेजेपी को पिछली बार हरियाणा के लोगों ने जो एक समर्थन दिया था, जो एक विश्वास दिया था, वो दिया था भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पे। क्योंकि दुष्यंत चौटाला कहते थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी का नारा था अब की बार 75 पार, तो दुष्यंत चौटाला कहते थे कि मनोहर लाल खट्टर जमुना पार। अच्छा।
इन्हें जमुना पार छोड़ के आवांगे, ये कहते थे। लेकिन जब उनको समर्थन मिला तो वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए था। लेकिन समर्थन मिलने के बाद उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जिस तरह से उस जन समर्थन का सौदा किया, उसका बहुत बड़ा विश्वासघात ये पूरे खित्ते ने जहां जहां से उनको समर्थन मिला था उनको लगा। और आप देख लीजिए कि 4.5 साल के बाद जब उनका गठबंधन टूटा है, तो आज दुष्यंत चौटाला कहीं भी हरियाणा के धरातल पे खड़े दिखाई नहीं देते। उनकी पार्टी के 7 विधायक उनकी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, जिनमें से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए, उनको टिकट भी मिल गया। तो आप देख लीजिए कि कैसे लोग इनके साथ थे, या ये खुद भी क्या थे। और ये गठबंधन की जहां तक बात आती है, तो जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, इन्होंने जो गठबंधन किया है वो आज समाज पार्टी है चंद्रशेखर की जी, और उस पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और चंद्रशेखर की वो पार्टी जो दलित वर्ग के हितों की बात करती, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूंजीपति हितों के साथ जाके खड़ी हो जाती है। और अभी तक चंद्रशेखर का कोई आधार या कोई संरचना या उस पार्टी का कोई कैडर हरियाणा में कहीं नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ऐसा लाभ इनको कहीं मिल सकता, सिवाय इसके कि वो 5, 7, 10 आदमी उनको कैंडिडेट के तौर पे मिल जाएंगे और इनकी गिनती पूरी हो जाएगी। क्योंकि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को अभी तक कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। तो ये हालात है। दूसरी जो गठबंधन है वो इंडियन नेशनल लोकदल का और ये बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा में कई बार चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट भी लड़े, गठबंधन में भी लड़े, लेकिन उनको अभी तक कभी कोई सफलता इतनी बड़ी नहीं मिली। एक बार शायद उनको 3 या 4 विधायक मिले थे, या एक बार एक उनके सांसद बने थे। लेकिन उनका जो वोट प्रतिशत है वो लगभग, अगर ज्यादा से ज्यादा कही गया तो 5.6% तक वो वोट ले पाए, उससे ज्यादा कभी वोट नहीं मिला उनको। और हरियाणा में उनका संगठन भी नहीं है। तो और रही बात इंडियन नेशनल लोकदल की, इनके पास तो पिछली विधानसभा में विधायक ही एक थे, अभय सिंह चौटाला, है ना जी। तो अब की बार हो सकता है कि इनके पास कैंडिडेट तो आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि अभय चौटाला की पार्टी को 1.87% ही वोट मिल पाए थे, इससे ज्यादा वोट नहीं मिले थे। तो ये लगता है कि हरियाणा में ये कोई पार्टियां, इनका कोई ज्यादा महत्व है नहीं। और अब जो मुख्य मुकाबला रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में रहेगा। और अब की बार ऐसा लग रहा है 10 साल के बाद जिस प्रकार से लोगों का आक्रोश है, जिस तरह से लोगों की गुस्सा है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव हो रहा है। और कांग्रेस को इसका जो लाभ मिलने वाला वो बाय डिफॉल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने 10 साल विपक्ष के तौर पे बड़े बड़े आयोजन किए हों, या नीतियों का विरोध किए हों, या ऐसे प्रदर्शन किए हों। हाँ, विधानसभा में आवाज जरूर उठाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और सशक्त आवाज उठाई, और कांग्रेस के जितने भी विधायक थे सदन में वो आवाज उठाते रहे। लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा के पूरे धरातल में इतने बड़े कुछ आयोजन नहीं किए, या इतने बड़े विरोध नहीं किए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती थी। आपको याद होगा वो जंतर मंतर पे या दिल्ली में सिलेंडर उठा के स्मृति ईरानी या भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रदर्शन करती थी। ऐसे जो विरोध हैं वो नहीं हुए थे विपक्ष के तौर पे। लेकिन हाँ, जरूर है कि भी जो भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से नाराजगी लोगों की, उसका लाभ कांग्रेस को मिल जाएगा जी। तो बहुत शुक्रिया सर। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ जी। इसका बिल्कुल मैं आपको, हम चाहेंगे कि और भी हमारे साथी हों जी, हरियाणा की राजनीति में जो जानकार हैं वो निरंतर इसमें आते रहें, और हमारे दर्शक जो भी रहें उनको हरियाणा की राजनीति और हरियाणा में अभी होने वाले सत्ता परिवर्तन की दिन भर की घटनाएं और आने वाले समय की घटनाएं के बारे में वो पूरी जानकारी मिले जी। और ये श्रोताओं को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और इस सारे खित्ते में जो आपसी साझ है, जो सभ्याचारिक साझ है, जो भाईचारिक साझ है, जो सामाजिक साझ है, इसको आगे विस्तार मिले और एक दूसरे से सद्भाव बने, और राजनीतिक तौर पे लोगों को और भी ज्यादा यहाँ की जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां, वो प्राप्त हो जी। और ये हमारी तरफ से कोशिश रहेगी, हम इसको पूरा करेंगे जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मेहरबानी।
ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਾਂ ਧਰਾਤਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।